So guys, next puzzle on the arrangement series, not very easy, but if you apply the proper method. What is method? Read each sentence very carefully, find out all the possible meanings of that particular sentence, then find out all the possibilities if the number of possibilities are manageable. Then so when you are reading next conditions, try to link the conditions which you have already read. So if you apply these, you can solve any puzzle, guys. So there is no puzzle that you cannot solve. You can pause the video and try to think. Before pausing, I will just try to explain the meaning of this first condition. All the six persons were in the multiplex for exactly 150 minutes. Okay, this is the starting until 150 minutes. All the six persons present, and after 150 minutes, all the six persons are not present. Then at least four persons were in the multiplex for exactly 200 minutes. So till 150, let's say this is 150 and 200. So from start to 200, okay, there are at least four, means there are four persons or five persons or all the six persons are present. But we have already seen six persons were present only till 150 minutes. After 150 minutes, six persons were not there. All the six persons were not there. That means ये six persons till 200 minutes नहीं हो सकते. So either there are four persons for exactly 200 minutes or there are five persons for exactly 200 minutes. You can pause the video here, try it yourself, and then come back to see the solution. So let's start with the explanation, guys. Each of the six persons, Ankit, Naman, Prajasatya, Jatin, and Chetan, went to watch a different movie in a multiplex. All the six movies started at the same time, but the length of the each movie was different. Okay, so हर एक मूवी की लेंथ डिफरेंट है. Each of the six persons entered the multiplex at the same time as the movie that he went to watch began and exited the multiplex immediately after the end of the movie that he watched. Now, that means each of the six persons, they are entering at the same time but exited at the different time. Okay, जितना मूवी का लेंथ होगा उसकी तुरंत बाद वो हर कोई बंदा बाहर निकलेगा और हर मूवी का लेंथ डिफरेंट है. दैट मीन्स ईच पर्सन इज एग्जिटिंग द मल्टीप्लेक्स एट डिफरेंट टाइम. सो पैरामीटर्स कौन कौन से यहाँ पर. सो मुझे ये पता है कि ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है बिकॉज इफ यू सी ऑल द कंडीशन कि फर्स्ट एग्जिट किसने किया, सेकेंड एग्जिट किसने किया, थर्ड एग्जिट किसने किया, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. सो अगेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. सो देर आर थ्री पैरामीटर्स. वन इज ऑर्डर, दैट इज अरेंजमेंट इटसेल्फ. देन सिक्स पर्सन्स एंड मूवी नेम कुछ नहीं दिया, सिक्स पर्सन्स एंड देन length of the movie that he watched. So these are the three parameters with which we can make our table and try to convert this data into information. Now let's try to look at the conditions one by one. All the six persons were in the multiplex for exactly 150 minutes. So now मैंने अगर timeline draw किया, okay, this is 150, let's say this is 150 minutes and this is still 200 minutes. Okay, तो सारे के सारे छह पर्सन 150 मिनट्स के थे और इसके बाद सिक्स पर्सन्स नहीं थे, मतलब कोई एंटर नहीं कर रहा है, एंटर सब सेम टाइम पे कर रहा है. दैट मीन्स 150 के बाद किसी ने एग्जिट किया. सो फर्स्ट, इसका मीनिंग ऑफ फर्स्ट पर्सन टू एग्जिट इज एग्जिटिंग एट आफ्टर 150 मिनट्स. तो फर्स्ट पर्सन का मूवी टाइम 150 मिनट्स का होगा, ये मुझे पता चल रहा है इससे. एटलीस्ट फोर पर्सन वेर इन द मल्टीप्लेक्स फॉर एग्जैक्टली 200 मिनट्स. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि एटलीस्ट फोर मीन्स फोर और फाइव और सिक्स हो सकते हैं टिल 200 मिनट्स, लेकिन 150 मिनट्स पे फर्स्ट बंदा छोड़ के जा रहा है. तो 200 मिनट्स तक ऑल द सिक्स पर्सन्स नहीं हो सकते. सो मुझे दो पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ी. 200 मिनट्स तक आइदर फोर पर्सन्स आर देयर और 200 मिनट्स तक फाइव पर्सन्स आर देयर. सो दीज आर माई टू पॉसिबिलिटीज. टू एग्जैक्टली 200 मिनट्स तक थे, मतलब 200 मिनट्स के बाद कोई और छोड़ के गया. ओके, तो अगर फोर पर्सन्स होंगे 200 मिनट्स के बाद एक पर्सन और छोड़ के जाएगा. दैट मीन्स 200 मिनट्स के बाद कितने कितने बचेंगे, तीन पर्सन्स. मतलब 200 मिनट्स पे कौन छोड़ के जाएगा, थर्ड पर्सन. ओके, इसके बाद तीन ही पर्सन बचेंगे, मतलब थर्ड पर्सन विल लीव एट 200 मिनट. एंड अगर फाइव पर्सन हुए एग्जैक्टली टिल 200 मिनट्स एंड पर्सन इज लिविंग आफ्टर दैट, सो दैट मीन्स इसके बाद फोर पर्सन ही बचेंगे. अगर फोर पर्सन बच रहे, मतलब यहाँ पर जो छोड़ के जा रहा है वो कौन सा होगा, वो सेकेंड पर्सन होगा. वो सेकेंड पर्सन लिविंग एट 200 मिनट्स. फर्स्ट इसमें अगर थर्ड पर्सन 200 मिनट्स के बाद छोड़ के जा रहा है तो सेकेंड पर्सन इज लिविंग इन बिटवीन 150 टू 200 मिनट्स. ये इसका मीनिंग हुआ. नाउ वी विल ट्राई टू सी नेक्स्ट कंडीशन. Chetan, who was the last person to exit the multiplex. So last person is exiting is Chetan.
exited the multiplex 60 minutes after Jatin. So I have noted down Jatin plus 60 is Chetan ka movie time. While Prajay watched a movie which was 220 minutes long. Prajay का movie is 220 minutes long. Now मुझे अगर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट मैंने कंबाइन किया तो मैं और क्या इन्फॉर्मेशन इससे डिड्यूस कर सकता हूँ वो अभी देखने का ट्राई कर देगा. So Jatin का मूवी प्लस 60 मिनट्स इज चेतन का मूवी एंड प्रजय का मूवी लेंथ इज 220 मिनट्स. दैट मीन्स चेतन का मूवी लेंथ विल बी मोर देन 220 मिनट्स. सो 220 से अगर ज़्यादा हुआ चेतन का मूवी का लेंथ तो जतीन की मूवी का लेंथ किससे ज़्यादा होगा? जतीन के मूवी का लेंथ 160 से ज़्यादा होगा बिकॉज 160 प्लस 60 इज 220. 220 से ज़्यादा है मतलब जतीन की मूवी का लेंथ भी 160 से ज़्यादा होना पड़ेगा. दैट मीन्स मुझे ये पता चल गया कि इफ फर्स्ट पर्सन इज लिविंग आफ्टर 150 मिनट्स जतीन कैनॉट बी द फर्स्ट पर्सन. ये मुझे एक क्लू मिल गया गाइस. ये मुझे बाद में काम आ भी सकता है और नहीं भी काम आ सकता है लेकिन हमारा मोटिव क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दो पॉइंट्स कंबाइन करने के बाद निकालना. ये हमारा मोटिव है. अगेन प्रजय इज वॉचिंग मूवी विच इज़ 220 मिनट्स लॉन्ग. तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन इज लिविंग exactly after 200 minutes. यहाँ पर थर्ड पर्सन इज लिविंग exactly after 200 minutes. As Prajay is living after 220 minutes, Prajay cannot be the second or third anywhere. That means Prajay कहाँ पर इस अरेंजमेंट में प्रजय का मिनिमम रैंक क्या आ सकता है? मिनिमम रैंक सेकेंड भी नहीं आ सकता बिकॉज सेकेंड पर्सन यहाँ पर 200 मिनट्स, यहाँ पर थर्ड पर्सन 200 मिनट्स, सेकेंड पर्सन इन बिटवीन 150 to 200 मिनट्स ये हो रहा है. तो प्रजय एटलीस्ट थर्ड होगा. प्रजय का रैंक इज मोर देन और इक्वल टू 3. in any case प्रजय का रैंक इज मोर देन और इक्वल टू 3. तो ये दो पॉइंट्स कंबाइन करने के बाद हमने ये दोनों इन्फॉर्मेशन निकाली कि जतिन कैनॉट बी द फर्स्ट पर्सन, प्रजय का रैंक विल बी थर्ड और मोर. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट द नेक्स्ट कंडीशन. The second person to exit the multiplex exited 30 minutes before the third person to exit the multiplex did so. That means थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के बीच एग्जैक्टली 30 मिनट्स का विंडो होगा. दैट इज थर्ड पर्सन का टाइमिंग विल बी सेकेंड पर्सन का टाइमिंग प्लस 30 मिनट्स. नाउ ये पॉइंट कंबाइन कहाँ कर सकते हैं? सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के बारे में मुझे कहाँ पर दिया है? फर्स्ट पॉइंट में हमने जो भी पॉसिबिलिटीज निकाली उसके ऊपर. यहाँ पर अगर थर्ड पर्सन 200 मिनट्स तक छोड़ रहा है 200 मिनट्स के एग्जैक्टली बाद, तो सेकेंड पर्सन यहाँ पर कब छोड़ेगा? उसके 30 मिनट्स पहले. मतलब सेकेंड पर्सन का टाइम होगा यहाँ पर 170 मिनट्स. ओके यहाँ पर अगर सेकेंड पर्सन 200 मिनट्स में छोड़ रहा है, ओके, थर्ड पर्सन इज लिविंग एग्जैक्टली 30 मिनट्स आफ्टर सेकेंड पर्सन. तो थर्ड पर्सन का टाइम कितना होगा? 200 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, दैट इज 230 मिनट्स. ये तो पॉसिबिलिटीज निकल गई. आइदर सेकेंड पर्सन का टाइम 170 मिनट्स एंड थर्ड पर्सन का टाइम 200 मिनट्स ये हो सकता है, या फिर सेकेंड पर्सन का टाइम 200 मिनट्स एंड थर्ड पर्सन का टाइम 230 मिनट्स ये हो सकता है. नाउ ट्राई टू कंबाइन दिस पॉइंट विद दीज टू पॉइंट्स. ओके यहाँ पर हमने क्या किया था? प्रजय का लेंथ इज 220 मिनट्स. अगर प्रजय का लेंथ इज 220 मिनट्स तो इस पॉसिबिलिटी में प्रजय को कहाँ पर मैं फिक्स कर पाऊंगा? थोड़ा सा देखिए कि प्रजय का 220 मिनट्स मतलब प्रजय इन दोनों के बीच में आ सकता है. बट दीज टू आर कंसेक्यूटिव पर्सन कि एक का 200 है एक का 230 है एंड दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. तो प्रजय के लिए मुझे जगह ही नहीं मिल रही इस वाली अरेंजमेंट में. प्रजय का 220 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है. हिंस ये पॉसिबिलिटी निकल गई. हमने ये पॉसिबिलिटी एलिमिनेट कर दी गाइस कि 5 पर्सन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते फॉर 200 मिनट्स तक. दैट मीन्स 4 पर्सन्स वेर देयर टिल 200 मिनट्स. सेकेंड पर्सन इज लिविंग एट 170 मिनट्स, तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ. थर्ड पर्सन इज लिविंग एट 200 मिनट्स. तो प्रजय का रैंक पहले थर्ड 3 और मोर हो सकता था, अभी प्रजय का रैंक यहाँ पर भी नहीं हो सकता. तो प्रजय का रैंक विल बी 4 और मोर. मतलब प्रजय आइदर फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा. प्रजय विल बी फोर्थ और मोर फिफ्थ. सिक्स्थ ऑलरेडी चेतन है तो प्रजय विल बी आइदर फोर्थ और फिफ्थ. एंड चेतन का टाइमिंग 220 मिनट से ज़्यादा होगा, ये भी हमने देखा था. नाउ लेट्स ट्राई टू लुक एट लास्ट कंडीशन. अंकित वो वॉच्ड अ मूवी whose लेंथ वाज एटलीस्ट 180 मिनट्स. तो मुझे यहाँ से क्या पता चलेगा? अंकित की मूवी का लेंथ 180 से ज़्यादा है मतलब अंकित का रैंक विल बी मोर देन और इक्वल टू 3. अंकित फर्स्ट और सेकेंड नहीं हो सकता. एग्जिटेड द मल्टीप्लेक्स इमीडिएटली बिफोर नमन. इमीडिएटली गाइस, इमीडिएटली बिफोर नमन. दैट मीन्स
अंकित एंड उसके तुरंत बाद नमन होगा. सो अंकित एंड नमन आर कंसेक्यूटिव. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या निकल सकती है मुझे पता है. ऑलरेडी सिक्स चेतन है, तो सिक्स नहीं हो सकता नमन. तो अंकित एंड नमन के लिए थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ. फिफ्थ सिक्स नहीं हो सकता बिकॉज नमन कैन नॉट बी सिक्स पर्सन. तो थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ. नाउ नाउ हम लोग ये दोनों कंबाइन करने की कोशिश करते हैं गाइस. प्रजय कैन बी आइदर फोर्थ और प्रजय कैन बी आइदर फिफ्थ. तो अंकित एंड नमन मुझे टू कंसेक्यूटिव चाहिए, थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ. तो किसी भी पॉसिबिलिटी में अंकित एंड नमन में से एटलीस्ट एक पर्सन तो फोर्थ प्लेस पे होगा. अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई तो नमन फोर्थ प्लेस पे होगा. अगर ये पॉसिबिलिटी हो गई तो अंकित फोर्थ प्लेस पे होगा. मतलब प्रजय किसी भी पॉसिबिलिटी में फोर्थ प्लेस पे नहीं आ सकता. तो प्रजय के लिए एक ही जगह बचती है. प्रजय इज फिफ्थ. प्रजय इज फिफ्थ एंड प्रजय का मूवी लेंथ इज 220 मिनट्स. तो इससे मुझे अंकित एंड नमन फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं हो सकते. फिफ्थ पे ऑलरेडी प्रजय है. तो अंकित एंड नमन का पोजीशन थर्ड एंड फोर्थ पे हो गया. सो दिस इज अंकित. नाउ दो ही पर्सन बचे, सत्या एंड जतिन. और हमने देखा था जतिन फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि चेतन का मूवी का टाइम 220 से ज़्यादा होगा. जतिन का मूवी का टाइम 160 से ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट पर्सन इज लिविंग एट 150 मिनट्स एंड जतिन फर्स्ट नहीं हो सकता. तो जतिन विल बी सेकेंड. जतिन का मूवी का टाइम इज 170 मिनट्स. तो 170 प्लस 60 चेतन का मूवी का टाइम इज 230 मिनट्स. सो एक ही पर्सन बचा है, सत्या. सत्या इज द फर्स्ट पर्सन टू लिव इन एंड हिज मूवी टाइम इज 150 मिनट्स. तो हमने सारा टेबल फिल आउट कर दिया. हमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट मिल गया, लेकिन सिर्फ नमन के मूवी का टाइम नहीं मिला. नमन इज लिविंग आफ्टर 200 मिनट्स एंड बिफोर 220 मिनट्स. सो गाइज अगर आप देखोगे तो हमने इस पजल में एग्जैक्टली किया क्या है. कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कुछ नया है या फिर कुछ अलग है. तो हमने सिर्फ एक अच्छी प्रोसेस से उसी को फॉलो किया कि हर एक सेंटेंस मिलने के बाद उसको तीनों एंगल से सोचा मैंने अभी, कि ऑर्डर के एंगल से, पर्सन कौन हो सकता है उसके एंगल से एंड टाइम के एंगल से. हर एक सेंटेंस पर देखने के बाद मैंने उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, वो सब कुछ जानने की कोशिश की. देन मैं जब भी नेक्स्ट कंडीशन पढ़ता था, आई ऑलवेज ट्राई टू लिंक दैट पर्टिकुलर कंडीशन विथ प्रीवियस कंडीशंस. तो लिंक करने के बाद मुझे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर कुछ मैंने पॉसिबिलिटीज़ पहले से मेरे पास प्रेजेंट है तो कुछ मैं एलिमिनेट कर पाता हूँ कुछ पॉसिबिलिटीज़. सो मेरा फोकस नैरो डाउन होता है कि मुझे पता चलता है एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. सो गाइज यही स्किल्स अगर आप डेवलप करोगे, ये दो स्किल्स, तो आप कोई भी पजल सॉल्व कर सकते हो. सो अभी हम क्वेश्चंस आंसर करते हैं. Now first question, what is the length of the movie that Jatin watched? So 170 minutes. For how many minutes were exactly 5 of the 6 persons were in the multiplex? So ये क्वेश्चन देखो कि इसका आंसर 6 पर्सन्स 5 पर्सन्स कहाँ तक थे वो नहीं है. एग्जैक्टली 5 पर्सन्स कितने टाइम तक थे, तो यहाँ तक 6 पर्सन्स थे फर्स्ट. सो एग्जैक्टली 5 पर्सन्स मीन्स फर्स्ट जब छोड़ के जा रहा है देर आर एग्जैक्टली 5 पर्सन्स, एंड जब तक सेकेंड छोड़ के जा रहा है देर वर एग्जैक्टली 5 पर्सन्स. सो आफ्टर फर्स्ट पर्सन लिविंग एंड बिफोर फर्स्ट पर्सन लिविंग जो भी टाइम फ्रेम होगा, फॉर दैट टाइम exactly 5 persons were there in the multiplex after 150 and till 170, so 20 minutes. Second का आंसर होगा 20 minutes and not 170 minutes. So if exactly 3 persons were in the multiplex for 15 minutes, exactly 3 persons mean जब थर्ड छोड़ के जा रहा है, after that exactly 3 persons were there and before fourth person is leaving exactly 3 persons were there. That means ये टाइम विंडो के लिए वो बात करते हैं. ये टाइम विंडो कितने का दिया है, एग्जैक्टली 15 मिनट्स का. मतलब 200 के बाद 15 मिनट्स के बाद में नमन छोड़ के गया. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मूवी दैट नमन वॉच्ड? 200 प्लस 15 दैट इज 250 मिनट्स इज द लेंथ ऑफ द मूवी दैट नमन वॉच्ड. सॉरी ये 4 नहीं होता. हाउ मेनी पर्सन्स लेफ्ट द मल्टीप्लेक्स आफ्टर प्रजय? सो प्रजय के बाद ओनली 1 पर्सन चेतन, सो आंसर इज 1 पर्सन.